ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮೊಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರಾಮದೇವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಾಧಿಕಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. कईयों को बहुत सालों से देखा है, कईयों को कुछ महीनों पहले देखा था, लेकिन ऑलवेज फील हैप्पी टू मीट यू ऑल हियर. सो लेट मी गिव यू अ ग्रैंड वेलकम हियर. On this grand venue, this grand event, and let's make it even more and more grander. आप में से किसको याद है लास्ट ईयर का मेरा थीम? किसको याद है क्या? मैंने क्या बोला था? कितने लोग यहाँ से बोल्ड विजन लेके गए? कितने सोच के कि हमको यहाँ से बहुत बड़ा बनना है और बहुत अच्छा. सो बोल्डर, बिगर एंड बेटर. सो आइडिया ऑफ कोर्स नेटवर्क, हैव फन टुगेदर, मीट पीपल, गेट आइडियाज, एक्शंस, लुक एट द सक्सेस स्टोरीज एंड सी रियली व्हाट इज इन फॉर मी, सो दैट व्हेन आई गो बैक I try to impact some of the ideas from there and I become much better, bigger and in the process bolder. But there is no fun unless we become courageous. We try to take our business to the next level, otherwise life becomes very boring. And I have seen a lot of partners really reinventing the business model based on the ideas we discuss here, and in the process making a big win-win value proposition for both sides. So a lot of people बहुत सारे फ्यूचर मिलते हैं कि सर हमारा फ्यूचर क्या है, कि we are in this kind of technology era, discount booking game. How do we not only survive but thrive? The game is not surviving. The game is thriving. So let's look at हमारे लिए जो एग्जाम्पल है, नियरेस्ट एग्जाम्पल इस यूएस का मॉडल कैसे चल रहा है. सो हमारी स्ट्रेटेजी टीम संचित ने कुछ डेटा बनाया कि भाई यूएस में बिजनेस पार्टनर मॉडल कैसे चलता है. सो RIA, ब्रोकर्स, वेल्थ मैनेजर्स, देयर वेरियस नेम्स, बट लेट्स से RIAs, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, and these are 4 firms which are pursuing the model which we are pursuing, the entrepreneurial model. आप देखेंगे numbers, LPL has the highest number, 32,000 partners, managing $2.3 trillion, half of India's economy. So ये 4 एग्जाम्पल आपके लिए, if you want to know more about it, we are very happy to share how they are doing this model. But this conference, like Business Impact Conference, is one of the ideas actually we got from US. Charles Bob used to do this event, so we thought that when we designed this event, I think in 8 साल हो गए, 10 years. So हमने बोला कि यार ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो why don't we create a very strong platform for the people to come together, learn from each other, exchange ideas, get the feedback, and share also our ideas. That's where we brought in. So you don't have to worry about this business model. In fact, technology era में this becomes even more important. Let me tell you. Because when it comes to meeting people, emotions, human beings are, they say that human beings are more emotional than rational. So
सो कोई बात करने के लिए चाहिए, कोई एडवाइस के लिए चाहिए, कोई हैंड होल्डिंग के लिए चाहिए. So we don't have to worry about this business model and the kind of asset. Charles Schwab, they managed $12 trillion worth of AUM through their partners. Only 16,000, but $12 trillion worth of AUM is being managed through their partners. And we are the biggest in the country. When it comes to business partners, हमारी मार्केटिंग बोलती है थिंक्स फ्रेंचाइजी, थिंक मोतीलाल ओसवाल. तो इस टाइम आपको नया मार्केटिंग टैग मिला है, थिंक वेल्थ क्रिएशन, थिंक मोतीलाल. पहले क्या था, थिंक इक्विटी. वी सेड दैट इक्विटी ऑफ कोर्स वेरी क्रिटिकल, बट इफ यू हैव टू क्रिएट वेल्थ, देयर आर लॉट ऑफ अदर एसेट क्लासेस वेयर we are equally good. So we said that let's transit from think equity to think value creation. So this is a slide Mr. Ramdev ji shared that there is going to be a hockey stick movement in the GDP. But what is interesting in that is that we took 60 years to build the first trillion, and if you look at the next trillion which came, so 7 years was the second trillion and another 7 years. But the most interesting part here is that you would be seeing 12 trillion in the next 17 years, and everybody sitting in this room will experience, the children will also experience it, the flow of the jump which we are going to see. And we like it or we don't like it, but India is going to achieve this. This is going to happen in your lifetime. So that's the push that GDP is going to get in the next 12 years. 12 years are very important. So every time the discussion comes कि GDP बढ़ रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, you know? So every time the government comes and announces the GDP growth, हमें लगता है what is in for us. So why GDP growth actually matters to investors is very important, and the reason is very simple, which is given on the screen. When your GDP grows, your market grows faster than the GDP. So if you look at all the markets, whether it is US or the world markets, India is very different. It grows much faster. If you look at the last 5 years, GDP has grown by 7%, but the market has grown by almost 25%. So there is no rocket science in understanding that India is going to be one of the fastest growing economies, and at the same time the market cap, whether we like or we don't like, is going to keep increasing as we move ahead. And that's why we say that the market cap grows, but the GDP grows, the market cap grows faster than the GDP. ये क्या है कि इंडिया जो है ना, ये कंपाउंडेड कंट्री है, इधर कंपाउंडेड अपॉर्चुनिटी बहुत है, और आपको ये मालूम है कि इसमें क्या होगा, लेकिन आपको पेशेंस चाहिए होने के लिए. वो चीज़ जो है ना, बिजनेस की है. अब मेरे पास जो शहर है सबको बोलता हूँ 20-25 साल में दे रहा हूँ, वो उतनी हिम्मत तो हुई 25 साल में बढ़ा नहीं. जब कंपनी चलती रही, जैसे आपका 1 का 5 है, 5 में अलग है, 5-7 साल फिर फ्रस्ट्रेशन होता है भाई इसको छोड़ के कहीं और चले. अब देखिए नया कैटेगरी बन रहा है, कोई कॉमर्स है, एकदम ब्रांड कैटेगरी, कोई पैसा नहीं करना है. जोमेटो ने पैसे नहीं कमाया, लिंक्डइन ने पैसे नहीं कमाया, इंडस्ट्री से कमाया. हाँ वो ठीक है, राइट को बात कमाइए, बट अब जो पब्लिक को पैसे कुछ बहुत मौका मिलेगा. देखिए एक बार लिंक्डइन लिस्ट हुआ, जोमेटो लिस्ट हुआ, शेयर में बनाया, डेढ़ साल में उसने आपसे अलग से एक तरह से हाँ ये मतलब मेरे कहने में कि ऐसा नहीं हो गया तो अभी आगे भी आएगा. हर 5-7 साल में नया डिग्री आएगा. हमें लगा कि पीछे वाले कुछ आपने इतनी बड़ी रजिस्ट्रेशन के चांसेस छोड़ दिए हैं, मेगा ट्रेंड छोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आगे वैसे नहीं मिलेंगे, आगे मिलेंगे और ट्रेंड चलेंगे, उस पर हम बात करेंगे. लेकिन उससे पहले सेम सवाल मेरे हिसाब से भी यही है कि कोई ऐसी बड़ी थीम, बड़ा सेक्टर, बड़ा शौक आपने पकड़ा और आपको लगा कि ये 10-20 करोड़ तो गुना हो सकता है, उसकी किस तरह से आगे. लेकिन उससे पहले विजय सर जवाब है, एक चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस की और हमने सबके जवाब में वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप हम सब लोग भाव देखते हैं कि HDFC का भाव 40 रुपये था, 800 रुपये हो गया. बड़े लोग कभी भाव नहीं देते, वो सिर्फ कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं. 800 रुपये में 8 करोड़ रुपये में मिला था, आज 800 करोड़ रुपये में. तो ये सोच आपको बड़ा बनाएगी. जब तक आप शेयर का भाव देखकर याद करोगे, अब जिस दिन आपने याद करेंगे भाई मैं
5,000 करोड़ वाली कंपनी ले रहा हूँ या 50,000 करोड़ वाली कंपनी ले रहा हूँ, भाव आपके लिए इररिलेवेंट रहेगा। तो पहली चीज अपने आदत में ये बदलाव लाइए कि मार्केट कैप की इस तरह से सोचना शुरू कीजिए। एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र आप जंजाने में लिखे, मैंने लिखे तो सर ऐसा है कि एक बात पक्का है कि ये जो मल्टीपल होते हैं 10 गुना 20 गुना 50 गुना, ये सोच के नहीं होते मेरे साथ। तो कम से मेरे में इतना नॉलेज नहीं है कि जब मैं लेता हूँ तो ये सोचूं कि शायद ये 20 गुना हो जाएगा 50 गुना हो जाएगा, तो ऐसा मालूम नहीं पड़ता। तो ये टॉर्च के जैसे आप टॉर्च जलाते हो 25 मीटर देखते हो, फिर 25 मीटर जलाते हो तो अगला 25 मीटर दिखाई देता है, इस तरह से। तो लेकिन मेरे को क्या है कि अगर जब तक मेरे में किसी शेयर्स का विजिबिलिटी ऐसा नहीं हो कि मैं इसको 10 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तब तक मैं कोई शेयर्स लेता नहीं। हाँ, मेरे को कोई बोले इसके परसेंटेज वाइज रिटर्न आएगा या 2 साल ठीक आएगा 3 साल आएगा, तो उस शेयर्स पे काम नहीं करता हूँ। तो जैसे ऐसे कई शेयर्स हैं जो मेरे तकलीफ से 100 हुए। एक जो अच्छा शेयर्स है जो लाइफ चेंजिंग, जैसे वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, तो ऐसे मेरा कंपनी का सेरा सर्टिफिकेट तो मैंने 2005 से लिया था, और मैंने करीब 80 रुपये का भाव में लिया और करीब 3% कंपनी का लिया होगा। उसके बाद के अंदर में वो शेयर से 2008 की तेजी के अंदर में वो 250 रुपया हो गया। फिर 9 जब 8 की मंदी आई लेविन ब्रदर्स की तो घटके पे 50-60 रुपया हो गया। फिर वो समझिए 600 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 1500 हो गया, फिर 800 हो गया। इस तरह वो शेयर चलता रहा। वो कोविड के अंदर में वो 4200 वाला शेयर 1700 रुपया हो गया, और कोविड के बाद के अंदर में 2025 में वो शेयर, इसके पहले 1-to-1 बोनस आ गया उसके शेयर्स के अंदर में, और मेरे को 250 रुपये डिविडेंड मिल गया उसके अंदर। अगर मैं कम बोनस कैलकुलेट करूँ तो देखा जाए तो 16 साल में मेरे को 80 रुपये में 250 रुपये डिविडेंड मिल गया। तो मेरा एफडी का सेविंग्स का अगर आप जोड़े तो ये सारा मेरे को डिविडेंड में आ जाएगा। तो शेयर्स लेने में फ्री हो गए। 1-to-1 जब 1% लास्ट ईयर मेरे पास में बचा, जो 2024 में मैंने 16,400 में बेचा, 8,200 लिए और 1-to-1 बोनस, तो मेरा पैसा 16,400 गुना हो गया, और वो हुआ 17-18 साल के अंदर में। तो ये इसके अंदर में ऐसा कहानी है, लेकिन ये आप सोच कर नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपने पेशेंस भी चाहिए। और कितनी बार वो शेयर 50-50%, 60% ऊपर से रोड डाउन हो गया उसके अंदर। तो उसमें एक दिक्कत आती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपने स्टॉक खरीदा 50% नीचे हो गया, बहुत लोगों के होते हैं, बहुत सारे स्टॉक हो गए। लेकिन जो आमतौर पर इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं कि जैसे 50% नीचे लेकर फिर भाव आया, मतलब उस समय जो खुशी होती है मैं बता नहीं सकता। इतनी खुशी तो अगर आप स्टॉक में 20-25% तुरंत बढ़ जाए पैसा कमा ले, उतनी नहीं होती। इतना 50% स्टॉक गिर गया, वापस भाव आया, भाव पे बेचने की जो खुशी होती है बहुत प्रेरणा देती है। चार छुट्टी आज के बाद ये आप मुझे लगता है आपको ऐसी स्थिति नहीं आती? नहीं सर, ऐसा है ना कि अगर सपोज मेरे को चर्च से मैं ट्रेन में बैठा हूँ और समझिए वंदे भारत पकड़ी है, मेरे को जाना है अहमदाबाद। अगर बॉम्बे सेंटर में मेरी ट्रेन लेट अगर हो जाती है तो मेरे को कोई गम नहीं है, ज़्यादा में वो फास्ट पहुँच जाती है तो मेरे को कोई खुशी नहीं है। मेरा नज़र जो होता है मेरे डेस्टिनेशन पर रहता है, मेरा नज़र बीच की जर्नी के अंदर में नहीं है। तो इस वक्त तो मेरे को बल्कि जब वो पुराना भाव लौट कर जब वापस पुराने भाव पे आता है, जैसे आपने बताया 50% घट के जब वो भाव पे आता है तो मन में कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने चीता पकड़ा है। नहीं तो 50% गिर के वापस रिकवरी कर लिए, ऐसा तो बंदा उसके बाद होना चाहिए। तो बल्कि वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि शायद मैं सही रास्ते पे हूँ। जॉब्स तो रहेंगे, और जो जॉब मतलब पीपल हु वर्क फॉर देमसेल्फ, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो भी रहेंगे। अब ऐसा बोला जा रहा है कि एआई के टाइम एआई सब कुछ करने का, जो अभी जो ब्लू कॉलर वर्कर्स कर रहे हैं, ये एक डर है। जैसे अनिल ने बोला कि मेरे ख्याल से 84 में जब पहली बार कंप्यूटर आया तो LIC में स्ट्राइक हुआ था, सारी PSU बेंच में सब में स्ट्राइक हुआ था कि हमको कंप्यूटर नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे। आज के दिन में LIC भी नहीं चल सकता बिना कंप्यूटर के। तो ये जो है मतलब ये समय है, निकलेगा ये, और जो जिस ढंग से लास्ट 10 साल चला, 15 साल चला है, उस ढंग से जॉब भी क्रिएट हो गए, बहुत अच्छे जॉब क्रिएट हो गए, और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी आएंगे। लेकिन जो बिजनेसमैन को जो रिस्क कैपिटल की अवेलेबिलिटी है वो बहुत बढ़ते चले जाएंगे। तो जो अच्छे जो बच्चे जो IIMs से कर रहे हैं, IITs से कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनको बहुत तमन्ना है अंदर से
कि भाई मेरे को बहुत बड़ा काम करने का है, मेरे को भी इलॉन मस्क भेज दिया आपने। स्काई रूट जो है बहुत छोटा मोटा इनोवेशन नहीं है, राइट। I mean, it is not taken that way, but from a country like India, जो बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा मतलब है, we are the top 3 countries in the world, अपना अमेरिका, चाइना, इंडिया, आप मतलब हार्डली 500-700 करोड़ 800 करोड़ के बूट स्ट्रैप मतलब स्मॉल बजट में Yes. आप फर्स्ट फ्लाइट में आप अंतरिक्ष में भेजते हैं, बहुत बड़ा इनोवेशन है। अच्छा खास बात क्या है, 6 महीने 8 महीने के बाद बोल रहे हर महीने हम एक और भेजेंगे, हर महीने मतलब आई थिंक 2027 में पूरे 12 महीने में 12 लॉन्च करेंगे बोले। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जिसमें जो नए एंटरप्रेनर्स आ रहे हैं, अग्रेसिव एंटरप्रेनर्स आ रहे हैं, रिस्क टेकिंग आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। बाकी कितने जॉब्स होंगे नहीं होंगे वो समझ बताएं। सर विजय सर ने कहा कि मेरी तो राइट थीम है, मुझे पता नहीं 10-15 साल में इकोनॉमी कहाँ जाएगी क्या जाएगी मुझे पता नहीं। आप बताइए 10-15 साल में इकोनॉमी कहाँ जाएगी? क्या 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की बन सकती है इंडिया में 10 साल 15 साल 20 साल में? और बनेगी तो एक तो ये क्या होता है ना कि पैसा वो बोलते हैं पैसा डबल हो गया आपका, भाई 1000 में 2000 हो गए, 10,000 तो 20,000 हो गए। और एक है ना 100 का 200 होना और लाख का 2 लाख होने में फर्क बहुत है। इधर 100 ही रुपये बढ़े उधर लाख रुपये बढ़े, करेक्ट। तो ये जरा समझाइए गणित कि कितना बनेगा पैसा, वो चाहिए। देखिए हमने पहला पेपर लिखा था 2007 में, इंडिया द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी, है ना। तो उस समय 45,000 का दाम था रुपये का और 45 लाख बोलते GDP, तो 1 ट्रिलियन डॉलर हुआ। पहली बार ट्रिलियन डॉलर हुआ, हमने पहली बार ट्रिलियन का पेपर लिखा। जैसे ट्रिलियन के तमाशे में खाएंगे पेपर लिखा। जब भी हमने ये पेपर लिखा 2007 में, हमने बोला कि अब जो है हर 7 साल में 7-8 साल में आपका ये डबल होगा, 1 2 4। तो पिछले 17 साल, अभी 2017 लिखा था हमने और अभी 2026 हो गया, तो समझिए 17-18 साल में आपका GDP चला गया 1 का 2 और 2 का 4। इस बीच में क्या 2 बड़े डिस्ट्रप्शन हो गए, कोविड के 2-3 साल खराब हो गए और सब डिमोनेटाइजेशन हो गए, थोड़ा बड़े GST में सॉरी ये कोविड में ज़्यादा खराब होता है। तो ब्रॉडली वर्क नाउ अभी जो है 4 से 5 3 साल के अंदर हो गए। तो अभी जो है 4 से होगा अगले 7 से 8 साल में 4 का 8 और 8 का 16, ये 17 साल में होगा। 17 से 1-2 साल कम में भी हो सकता है, 1-2 साल ज़्यादा भी हो सकता है कि ज़्यादा जियो पॉलिटिकल में प्रॉब्लम आए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 17 साल ही लगे, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ पीछे का जो नंबर है उसको मैं आगे कर रहा हूँ, कुछ नहीं। अब यदि 4 का 8 हो, 8 का 16 छोड़ दीजिए, पहले 4 से 8 जीते हैं। आपने कभी देखा था मुंबई में 1 लाख रुपए स्क्वायर फुट भाव जुहू में या वर्ली, मतलब आप जहाँ से माहिम क्रॉस करो, एनीथिंग विच इज न्यू इट इज गोइंग टू बी 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर फीट, और वो भी कभी 4 साल के बाद आपको डिलीवरी मिलेगी। ये लेवल का रियल एस्टेट प्राइस कभी देखा आपने? और सस्टेन हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है, बन रहा है, बिक रहा है, बन रहा है, पूरा बिक रहा है। राइट। तो ये जो है ना इकोनॉमी का जो स्ट्रेंथ है वो उसी कारण से है। अच्छा ये 4 का 8 हो जाएगा, आप देखिए बीते 7-8 ईयर्स 9 ईयर्स में आपको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन 4 का 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा आप देखिए डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, सी स्टॉक मार्केट इज आल्सो डिस्क्रिशनरी, इस गरीबों के लिए नहीं बाजार, ये बाजार है सेठ लोग के लिए। ठीक है, बाद में गरीब हो जाए अलग बात है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा बना ही सकते हैं, नहीं है तब भी बना सकते हैं। तो अब आपसे भी वही जानना है कि मेगा ट्रेंड्स नए क्या बन रहे हैं, बड़ा पैसा कहाँ बनेगा। इकोनॉमी आपने बता दी, समझा दी कि चलिए बहुत पैसे बनने वाले हैं, 7-8 ट्रिलियन अगर इकोनॉमी में जुड़ेंगे आने वाले समय में तो सबके बनेंगे और बहुत ज़्यादा बनेंगे, अपने को थोड़ा ही चाहिए। थोड़ा तो एक तो पहली बात है ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है। ये जितने बदमाश लोग सभी आ गए, मतलब ये सरकार ये कर दी वो कर दी, नेगेटिव बोलने वाले, इतने नेगेटिव बोल रहे, सबसे बड़ा पहले उनको भगाया जाए। मतलब ऐसे ही बात है, एकदम सही है, एकदम माथा खराब कर देते समझे ना। अच्छा वो खराब हो जाए ज़्यादा खराब बोलते हैं समझे ना। तो मतलब जो रहा साहब पैसा जाता है वही निकल जाता है, तो उससे बचना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ज़्यादा मतलब जी बिजनेस देखना चाहिए, बाकी लेकिन दूसरा देखना चाहिए होता है।
मैं एक चीज़ पक्के से बोल सकता हूँ, कम से कम जिस समय मार्केट खराब है हम लोगों का मूड खराब नहीं होने देते हैं। ये तो हमारे हाथ में नहीं कि मार्केट बढ़ जाए, हमारे हाथ में तो रोज़ मैं तो कई बार ऐसा रोज़ प्रार्थना करता हूँ भगवान से, एक वरदान दे दे, मेरी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि सुबह 9:15 बजे तेज लो पे खुले 3:30 पे इंडिया हाई पे बंद कर देगा। इसके बाकी सब हमारे सब लोग हैंडल कर लेंगे, इतना आ जाए तो काफ़ी है। लेकिन यही बात है कि जब और हैंड होल्डिंग की ज़रूरी होती है, और ट्रस्ट भी मैं रामदेव सर को बार बार इसलिए डिस्टर्ब भी नहीं करता कि सर आओ अटेंड करो। जब ऐसा लगता है कि बड़ा मायूसी वाला मंदी वाला माहौल है तो सर को बुला के हम एक बूस्टर डोज दे लेते हैं कि सब ठीक चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो ठीक तो चल रहा है, बढ़िया भी चल रहा है। पैसा बताओ सर, पैसा कहाँ बनेगा? पैसा देखो पैसा बनेगा इन्वेस्टिंग में। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। एक ठीक है, हमारा बिजनेस अलग है थोड़ा। आप सब लोग आप वाले बिजनेस के हैं बस। इतना प्रेम से पैसा बनेगा ना, इतना शांति से प्रेम से बिना मतलब आप भजन करते रहो और पैसे बनेंगे। सर गाने गाते रहो, पैसे बनेंगे आपके। आप मतलब ये अल्टीमेट एग्जाम्पल है। हाँ, इतना टाइम लाइफ में सर को कभी मैंने मतलब ऐसा नहीं 2 दिन में फ़ोन नहीं उठाया, और बुलाओ तो प्रेम से आते हैं। मतलब मैं क्या करूँ, मेरी कंपनी मेरे लिए काम कर रही है आराम से, मैं आराम से फ्री रहता हूँ। तो जो जब देखिए जब पतंग उड़ाने जाओ ना तो देखिए हवा नहीं चल रही हो तो पतंग अच्छे से निरंजार नहीं चला सकते। और जो ऑर्डनरी हम लोग हैं, हम लोग चला ही नहीं सकते, वो उड़ा पतंग को गिर जाता है। उसी कारण देखिए पूरे आसमान में एक तो पतंग चलते रहते हैं, पूरा खाली रहता है, यदि हवा नहीं चल रही। जब हवा चलती है चकाचक पूरे लाल हरे तरह सब चल दिखता है ना। तो ये माहौल जो है इंडिया का अगला 15-20 साल 25 साल ये है एकदम चकाचक हवा चल रही है, पतंग उड़ाने वाली चीज़ है। आप सबके पतंग उड़ेंगे, सबके पैसे बनेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सर आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा बनेंगे पैसे। मैं एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ क्यों बनेंगे। मोतीलाल सर भी यहाँ बैठे हैं। एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं लॉजिक लगाता हूँ, ये सर ये किसी भी बिजनेस में सबसे मुश्किल काम है कि कस्टमर को ढूंढ के उसको अपना प्रोडक्ट बेचना, राइट। जिस कंपनी को बेचना आ गया, प्रोडक्ट बेचना आ गया, उसके लिए मुझे लगता है सबसे आसान काम कौन सा है, जहाँ कस्टमर खुद ढूंढता हुआ पहुँचे कि इस प्रोडक्ट की शॉप कहाँ है, ये कहाँ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इतनी जनरेशन से हिंदुस्तान में एक ही बिजनेस ऐसा है जिसमें कभी उनको कस्टमर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कस्टमर हमेशा पहुँच गया, गोल्ड का, ज्वेलरी का। छोटे से छोटा गांव हो या सिर्फ बड़े से बड़े शहर, आप सबको कुछ ज्वेलरी की शॉप का है, सबको पता रहती थी। उसे दारू का दुकान भी है, वो भी है। वो दूसरा तो ये आ रहा था। तो 2 चीज़ें। और केमिस्ट शॉप, हाँ दवाई हाँ दवाई, दवा दारू, दवा दारू पीने वाले ढूंढ ही लेते हैं, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, पीने वाले ढूंढ ही लेते हैं रास्ता फिर मैट खाने का। तो वो वाली बात है। तो ये कुछ बिजनेसेस है, और वही सेम चीज़ रामदेव सर मुझे लगता है आपके बिजनेस में हो रही है। एक ज़माना था जब आपने करियर की शुरुआत की, अगर किसी आदमी के पास में मेन ब्रोकर तो छोड़कर सब ब्रोकर के पास में अकाउंट है, तो ऐसे कॉलर ऊँची करके चला तो मेरा उस मेन ब्रोकर के पास अकाउंट है, राइट। आज कस्टमर्स आपको ढूंढते ढूंढते पहुँच रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आप बता नहीं रहे कि 25 साल में आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा? कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट में तो कितने बार इंटरव्यू हो जाती है, मैं वो तो खुद देखता हूँ क्या हो रहा है। मतलब ये बिजनेस ऑटोमोटिव में बोलोगे तो मैं बाहर से देख रहा हूँ, लेकिन कैपिटल मार्केट तो हम अंदर से देख रहे हैं, हमारे खुद के पता बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए 2020 साल में था ना, बहुत रिस्ट्रिक्टेड मार्केट था, सब टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर। मतलब जो आपका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत वीक था, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक थे, तो फिजिकल रीच नहीं था। जैसे अमेरिका में क्या था, फिजिकल रीच बहुत अच्छा था, 100% टेलीकॉम था, मतलब फिक्स लाइन था लेकिन टेलीकॉम था। अब क्या इंटरनेट जो है ना पूरा हवा में चलता है, और पूरी कंट्री में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया 2020 में, और आ गया कोविड। तो कोविड में जितने ब्यूरोक्रेसी सबके दिमाग ठंडे हो गए, सबने क्या कर दिया, सब डिजिटल ऑनबोर्डिंग कर दिया। तो डिजिटल ऑनबोर्डिंग की है तो आपने 40 मिलियन जो डीमैट अकाउंट है वो 3 मिलियन हर महीने आ गए थे, लास्ट महीने में 2.5 मिलियन आया। तो अब हो गया 240 मिलियन वाला डीमैट अकाउंट हो गया 230 मिलियन, 232 मिलियन हो गया, 22-23 करोड़ अकाउंट। हाँ। अब इसमें यूनिक कितने होंगे ठीक है, लेकिन
वहाँ भी यूनिट पूरे थे, अभी भी यूनिट पूरे नहीं होंगे। लेकिन ये जो फैलाव है, लोग कोई 10,000 रुपये लेके आ रहे हैं, कोई 50,000 लेके आ रहे हैं, कोई करोड़ों में लेके आ रहा है। ये जो गर्मी जो है, आप तो जाते ही सब दूसरे जगह जाके देखिए, Tier 2, Tier 3, Tier 4। पहले हम जाते थे जयपुर, राजकोट तो गए नहीं कभी। और ये सब जगह हम जाते थे तो बहुत अवगत करते थे, कोई रसगुल्ला खिला रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसे जैसे कोई यूनिक आदमी आ रहे बाहर से। अब जाते हैं तो वो हमको सिखाते हैं कि हमारी कंपनी को वेरिएशन कैसे होना चाहिए। क्या बात है। तो ये बदलाव जो है ना, आप समझिए रायपुर में तो रायपुर में कुछ ही स्टॉप होते, 1-2 मजे लगे होते थे उनको, मतलब पागल तरह घूमते थे, वो कुछ गुस्सा नहीं था। अब फिर जाकर ही इतना बड़ा मैं भी करके आया हूँ रायपुर में थोड़ा टाइम। या तो ये क्या है, जो फैलाव जो है बाजार का, ये बहुत बड़ा हो गया है कैपिटल मार्केट का। अब इससे क्या होगा, आपके जो बिजनेसेस हैं उसको पैसे मिलेंगे, आपको सेकेंडरी मार्केट महंगा हो जाएगा, उससे ज़्यादा से प्राइमरी मार्केट जो है, जो प्राइवेट इक्विटी हो रहा है, उसमें महंगे हो जाएंगे। और उसके महंगे हो जाने के कारण से लोग जो है ना, जो स्टार्टअप है उसको पैसे मिलेंगे। आज के दिन में यदि आप 2 IITian और 2 IIM हैदराबाद वाले लड़के को अच्छा आइडिया लेके आए, उनको 10, 20, 25 करोड़ मिलना बहुत ईजी। रामदेव और मोदी को 1 लाख रुपये मिलने का मुश्किल था, इसी समय। आज के दिन में आपको यही दोनों की जोड़ी को 100 करोड़ 200 करोड़ मिल जाएगा एक बार। तो ये फर्क है। लेकिन थोड़ा बिजनेस को बनने में टाइम लगता है। तो ये जो आपका जो समय है यहाँ जो चालू हुआ है, 2020 से चालू हुआ है, ये सुपर टाइम है इंडिया का। यदि मान लो कोई वार और नहीं हुआ, एक वार एक ऐसी चीज़ है जो इट इज़ मोस्ट इरेशनल, जो नहीं पता उसका क्या। हाँ, क्योंकि वो नहीं हुआ तो ये जर्नी जो है 17 साल में मेरे ख्याल से 14-15 साल में होगी। और इससे बड़ा बुलिश एंड कंपाउंडेड स्टॉक मार्केट मेरे को समझ में आता कहीं और एक सफर अमेरिका है। अमेरिका में भी सिर्फ इनोवेशन है, अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल मार्केट, आई थिंक द वे इंडिया इज गोइंग टू एक्सपांड एट द रेट ऑफ 12-13% इंडेक्स लेवल, वो मेरे कहीं दिख नहीं रहा। ये सर थोड़ा सा ये तो बहुत सीरियस बड़ी इंटरेस्टिंग वो ऐसी बातें डेटा वाली भी हुई, लेकिन मैं आपसे एक थोड़ा सा सवाल ये पूछने लगा हूँ। आपने भी बोला 10 साल के लिए पैसा लो, रामदेव सर ने भी बोला। प्रॉब्लम क्या है, ये सब लोग अभी जब बैठे हैं ना, वो सबको लग रहा हाँ 10 साल में बहुत बनेंगे। अब होगा क्या, मंडे सुबह जब पहुँचेंगे अपने अपने ठिकानों पे, जब वापस क्या है, दिन की लाइफ, रोज की लाइफ ऐसी है, दाव को सुलाने के बाद सोते हैं और गिफ्ट 50 के जगने के पहले जाग जाते हैं। वापस वही कि अरे दाव नहीं हो गया, गिफ्ट 50 में। आजकल तो नया कोरिया भी देखना पड़ता है, वो देख चेक करते हैं कोरिया कितना हो रहा है। अब ये रोज वाले झंझट से कैसे बाहर निकले? आप ही देखते हो, आप देखते हो तो आपका क्या रिएक्शन होता है? कौन सा गाना गाते थे आप? तो मैं तो सर वो गाता हूँ, किसी को भी ना समझ में तो आए, तो बढ़ता बढ़ता क्यों गिर जाए। आके बोला सर, ऐसे मजा नहीं आता है सर, हमको क्या पता आपने क्या बोला। सर वो तो मैं प्लेबैक सिंगिंग को दूसरा गाता हूँ, मैं खाली लिप सिंग करता हूँ। वो अभी पता चलेगा सर, प्लीज। किसी को भी तो ना समझ में तो आए, तो बढ़ता बढ़ता क्यों गिर जाए। ये 90% लोग क्यों पैसे गवाए, जो सोचा समझा खूब समझ में आए। जो लेके गए बैठ वही तो है कमाए। ये 90% लोग बैठ न पाए। आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो सोचो भैया। 10 में से 2 लोगों का होता मार्केट में रुपया। लगता है सीधा साधा पर है ये भूल भुलैया। कोई भी बच ना पाया BACA भैया। तुम ही अपनी किस्मत के आखिर में हो रचैया। तो 2 चीज़ें बेस्ट होगी, आवाज़ भी आप ही की है, लिखा भी आप ही ने है। नहीं तो याद नहीं होता, दूसरों का लिखा हुआ दूसरों का पढ़ा हुआ ऐसे याद नहीं होता है जब। तो अब हम क्वेश्चन आंसर भी शुरू लेते हैं थोड़े से हमारे ऑडियंस से भी, अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछने तो बताएं। Sir, how do you actually choose these small cap, small cap companies? Because I have noticed in your portfolios, wherein they are so small, like 200-300 crore wala stocks also you have currently, and they are currently loss making, and FIIs are not there, DIIs are not there, so we don't know how to analyze the
management. The worst part is we as retailers wouldn't know how to analyze the management, whether they are good or not. Is it that you have the advantage where you can reach out to the management, which we do not have? So I will tell you, so far listed companies are concerned, so far I remember none of the company I have invested, I have never met the management before investing, let me tell you. Because, and usually I invest in small cap and mid cap. And I have this view, and it is not out of arrogance or anything, any such thing. I think that even management does not know that how big he can become. This is applicable to the small and mid caps only. I am not talking about Tata companies and Birla and Bajaj companies and all. But the small and mid caps company, 500 crore, 1000 crore, 2000 crore company, they also don't know how big they can become. So that is my advantage, because sometimes I have more confidence in the company than the management itself. And secondly, as you said that how do I decide? So that is why I said that I am applying that SMILE formula. So I can invest in a company if company is not making any profit, provided the future is bright. If company is growing, if top line is growing, if the market size of the product of that company is growing, that is a comfort factor for me. In that circumstances, even if the company is not making any money currently, but if I can assess that maybe going forward, maybe after 6 months or maybe 1 year, like when I invested in Tejas Network, company was not making any profit, but company was having around 150 or 200 crore in its bank, okay, and market cap was around 400 crore, and company was not making any profit. So, but because I believe that this telecom market is going to boom, because ultimately the 4G will come, then 5G will come, then 6G, and all those things will happen sooner or later. So that was a complete, so I looked at the market size. So just looking at the market size, and there was a kind of monopoly, there was no other manufacturer in India. Other competitors were in Ericsson and Huawei and all, which was banned by government of India. And there was again, government was insisting to apply this Make in India theme and Make in India. So all these things were in my favor. And so that is why I chose this Tejas Network. Similarly, I will tell you one example, if it is fruitful for you. I bought one company, Sudarshan Chemical. That time it was 40 rupees. In 2014, I was discussing with NLG. So I was in China. I stayed in China for 9 months. I was developing something for one company, okay, for Atul Auto. So we are not discussing that. So I was reading on newspaper everywhere in the world that now government is taking action to stop this pollution and all. So all these dyes and pigments company will shut down. So when I was in China, I could really see that what the situation of pollution was. I went to Beijing also to see, because Beijing was the worst polluted country in the world, or city in the world. So I went to Beijing just to see that how things look when it is polluted. So it was totally black and all. So sitting there, and luckily, again I am saying luck plays a very important role in whatever you do in your life. Somebody asked me, I said that 150% luck played, because 50% foolishness which I did, in spite of that, if I am 2 steps ahead, that means that is pure luck. So luckily I met 2 people from the chemical industry, from different company in chemical in China, and they told me that China has started closing down all these dyes and pigment companies and all. So sitting there in China, I got 2-3% of the company called Sudarshan Chemical, which I was discussing. So this is how I decide. So as I said, please remember, I apply one formula, so lamba ho gaya hoga. In short, I will tell you, I am applying another formula, जिसको मैंने नाम दिया सर formal. F for focus, O for observant, R for risk taking capacity, and M का भी भूल गया मैं बताता हूँ, और A for adaptability और L for love. You have to fall in love with stock market. M for management. नहीं, mindset. Yeah, M for mindset. अगर 60% मेरा शेयर गिर गया है, तो मेरा का माइंडसेट होना चाहिए कि तो हाँ कर या ना कर, तो है मेरी किरण, ऐसा होना चाहिए. You know, weak currency is part of your whatever external sector is there. Your current account is in deficit, your capital account is in deficit. So you have weak currency, and this is going on from 92 crisis. And the 92 crisis was very deep, and we have not been able to correct it, though we are in much better shape. So I think in foreseeable future, we have to assume, in foreseeable future, I am saying, if oil comes to $20, $30,
of course things will change. But today, the way things are, I would assume that our currency will keep depreciating 2-3% per year, and despite that, India will grow at 8% real, 7.5-8% real, and my corporate earnings will grow at about 30-40%. My stock market in local currency rupee terms will grow at about 13-14-15%. I as an investor, I would like to make money at about 18-25%, 18% at least 4 times a year, and if I can have a friend like Vijay Kireji, then I would think that I can double my money every 2 years. Wow. So that's why we are calling here to help you make money. So don't worry. See, these are all factors which are out of syllabus. In the sense that you cannot actually. I mean, this is given. I mean, ये सब हो ही रहा है 25 साल से हो रहा है. But if you bring it right in front of you, I think it will stop you from making investment. So look at broader things. आज आपने GST number देखा 15.5% all automotives, they have declared numbers which are 20-50% higher than last year. It's a bumper. Economy is on a roll except for the currency. So that's not. सर आपका बस पर खंडा है. जिस लोगों को लगे करेंसी डेप्रिशिएट होने से बहुत तकलीफ हो रही है, उन सेक्टर्स में उन शेयरों में पैसा लगाए जिनको करेंसी को डेप्रिशिएट होने से फायदा होता है. बात खत्म. अगर किसी को क्रूड बहुत बढ़ने से तकलीफ हो रही है, उन शेयरों में पैसा लगाए जिनको क्रूड बढ़ने से फायदा होता है. मंदी वालों से दूर रहो. एग्जैक्टली. मंदी वालों से दूर रहो. और कभी बेचने का मन नहीं करे. बेचने का मन भी करे तो खुद बेचो ना. सर ऐसा है ना कि हम लोग क्या ज़बरदस्ती अपने आजू बाजू में इतनी सारी टेंशन ले लेते हैं. तो मेरा गाना याद आता है सर. वो ऐसा है कि कभी DI, कभी FI, इन्फ्लेशन, कभी तेल, कभी डॉलर, कभी बारिश, इन सब का है ये खेल. शॉर्ट टर्म में है कि कई नाम यहाँ, या टेंशन के हैं कई नाम यहाँ. जरा हटके जरा बच के शॉर्ट टर्म में मेरी जान. कभी मैक्रो, कभी माइक्रो, कभी स्लो डाउन, कभी स्केल, कभी US, कभी चाइना, कभी झगड़ा, कभी मेल. प्रॉब्लम्स के हैं कई नाम यहाँ. जरा हटके जरा बच के शॉर्ट टर्म में मेरी जान. क्या बात जी. प्लीज. सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ आदिल सर. एंड आई हैव बीन वाचिंग योर शोज वेरी रेगुलरली. सर 8 से 8:30 जो भी हो जाए, बट आई एम श्योर आई एम देयर टू वॉच दी बिजनेस. और वो जो आपकी सारा स्ट्रैटेजीज होती है आई फॉलो इट. बट सर टू बी ऑनेस्ट, इनिशियली जस्ट आफ्टर कोविड 2 years में मैंने बहुत पैसा कमाया एज अ ट्रेडर. So now I am I have a franchisee business. और पर अब 1 साल से सर मैं आपको exactly follow कर रही हूँ, पर बहुत मुश्किल हो रही है, पैसा नहीं बन रहा. सर प्लीज बताओ क्या करूँ. पहले बहुत ज़्यादा बना दिया ना. फ्रेंचाइजी बिजनेस खोला. No. One thing. HDFC बैंक का वो आपने दिया था कि ठीक हो, आप 730 पे आपने दिया था. सर 800 गया, सब कुछ हुआ, फिर वो 850 से फिर नीचे 1 हफ्ते के अंदर. देखो ऐसा है. वो कहाँ पे बेच रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा. Okay. So two things. First and foremost, please be sure of it that you are in the right business. Whether you are trading, whether you are investing, or whether you are into franchisee business, you are in the right place in right business. So, for you, one simple research what we did, since 2001, in last 26 years, there has been 30 instances. 13 बार सर ऐसा हुआ है जब 17 महीनों का पीरियड ऐसा था जिसमें मार्केट में कोई रिटर्न नहीं किया. 17 महीनों के पीरियड में, और या तो 1-8% ऊपर 1-2% नीचे 17 महीनों का नल पीरियड है जो आपका सितंबर-अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ, एंड विच ended in somewhere in February or March. Next 1 year, market has given on an average 22% return. Next 2 years, on an average 40% return. So, if you had patience for last 1 year when you didn't make money,
अब आपके लिए टाइम आ गया। अगले 1 साल में, अगले 2 साल में जो पैसा बनेगा आपने सोचा नहीं होगा वो पैसा बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज दिमाग में बिठा लिए, जरूरी नहीं कि रोज बनना है या रोज बनना है। अगर उस समय रोज बन गया तो आपकी किस्मत अच्छी थी। कभी कभार आपको कुछ ऐसा पीरियड आता है जब नहीं बनता है। कई बार ऐसा होता है, ऑनेस्टली जैसे सर ने इतनी सारी स्टॉक्स की बात की, मैंने BSc रिकमेंड किया था, मुझे थोड़ी पता था कि 60 गुना 70 गुना हो जाएगा, मैं तो डबल हो जाने में खुश हो जाता था। अब वो इतना जल्दी बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया। विजय जी सर सब मुझे पूछते थे कब बेचना है, अब मेरे पास कुछ जवाब नहीं कि कितना बढ़ेगा। पता नहीं कहीं से आकाशवाणी हुई, मेरे मन में पता नहीं क्या है, क्यों आया, बिना सोचे समझाया आज आपके सामने बता दो कि जब तक NSE का IPO नहीं आया तब तक नहीं बेचना। वो पता नहीं वो फॉर्मूला कहाँ से निकला, कैसे निकला, तब से लेके BSc बढ़ते जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, वी आर जस्ट लकी, we make lot of money. Sometimes I am not that lucky, we don't make money, but keep patience. आपके किसी भी भाव के HDFC बैंक लिए हो, आपका बहुत पैसा बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए। Be sure of it, or anything what you have, you will make money. My best wishes. आइए शो हम खत्म करेंगे, उससे पहले एक और चीज, तो आज विजय सर का एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है, हम उसका वर्ल्ड प्रीमियर करने जा रहे हैं। और वो ऐसा सॉन्ग है कि बड़ा वो फुट टैपिंग सॉन्ग है। आप लोग चाहें तो पूरे दिन भर से थके हुए थोड़ा डांस भी इसमें कर सकते हैं। तो एक बार जरा प्लीज। Come on, सब लोग मिलकर। Come on, सब लोग मिलकर। ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 10 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರ, JP ನಗರ, ಯಲಹಂಕ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಹುಬ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 500 ರುಪೀಸ್ ಟೋಕನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ 3 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ. ಶುಕ್ರವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆ, ಶನಿವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ, ಭಾನುವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ 10 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಐ ಓಪನರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೆಳಕಂಡ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರೀ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ TD ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಷೇರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ. 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 60 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ TD ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.